Hello everyone and welcome back to Ansarkari. Today we will be revising current affairs in a quick manner. So let's get started and let's get to the first question. First question is Malaprabha River originating from Kanakumbi village, Belgaum district, Karnataka is a tributary of Kaveri River. We have to state if this statement is true or false. So the statement is false because Malaprabha River is one of the largest tributary of Krishna River, not Kaveri River. And if you talk about Malaprabha River, then Malaprabha River पे एक important World Heritage UNESCO site भी located है, that is called Patadakal Temple, that was constructed by the Chalukyas in their reign. Let's get to the second question. Second question is Mandovi and Zuari are the two primary rivers in Goa. If the statement is true or false, this statement is true. दोनों ही primary rivers हैं गोवा में. They both drain into the Arabian Sea. And if we talk about Mandovi River पे एक important bird sanctuary located है, that is called Salim Bird Sanctuary, and it is located on the island of Churao in the Mandovi River itself. So this statement is true, and note down the important point. Let's get to the third question. Third question is AMASR Act 1958 was amended in 2010 and declared 300-meter radius of protected monuments as prohibited area. AMASR Act जो है, it is the Archaeological Monuments and Ancient Sites and Remains Act. इसको 2010 में अमेंड किया गया था एंड दो टाइप के एरियाज डिक्लेयर किए गए थे, प्रोहिबिटेड एरिया एंड रेगुलेटेड एरिया. Prohibited area was 100 meter around the 100 meter radius around the monument. So this statement is false क्योंकि prohibited area was 100 meter around the radius and 300 meter radius जो था that was regulated area. Let's get to the fourth question. Under the AMASR Act, no infrastructure construction is allowed within the prohibited area. This statement is false because जब 2010 में amendment किया गया था, only government is allowed to create infrastructure in the prohibited area. But जो infrastructure creation है, that should only be for the public purpose. So this statement is false. Only government is allowed. Fifth question is unsaturated fat is as harmful as trans fat. This statement is false, entirely false, because unsaturated fat जो होता है, it is good fat जो हमें vegetable oil, seeds, nuts से मिलता है. Trans fat जो होता है वो हमारा unsaturated fatty acids होता है, that is not good for the body. ट्रांस फैट की भी अगर हम बात करें तो दो सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्स होता है एंड इंडस्ट्रियल सोर्स होता है. अगर इंडस्ट्रियल सोर्स की हम बात करें, इट इज़ द पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ऐसे वेजिटेबल ऑयल्स जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं टू मेक इट मोर सॉलिड. So this fifth statement is false. Unsaturated fat is good for our body and trans fat is more harmful. If we get to the sixth statement, unsaturated fat comes from liquid oils. This statement is true. Unsaturated fat comes from the liquid oils like vegetable oils. Let's get to the seventh question. In regards to ethylene glycol, it is toxic only when it is oxidized. If this statement is true or false. This statement is true. Both ethylene glycol and also methanol, ये दोनों पहले नॉन टॉक्सिक होते हैं, बट जब इनका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है तो दे बिकम टॉक्सिक. This particular question is regarding the news article that we read some time ago that was about the ethylene glycol control order. इसमें हम एक और पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं. जब हम कफ सिरप्स में ग्लिसरीन को रिप्लेस करते हैं डाइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल से, देन द कफ सिरप बिकम्स टॉक्सिक. एंड ऐसा ही कुछ हुआ था इस इंसिडेंट में. सो दिस सेवेंथ स्टेटमेंट इज ट्रू. इथाइलिन ग्लाइकॉल टॉक्सिक हो जाता है व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड. एट्थ क्वेश्चन इज राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ डैश. राइट टू स्ट्राइक हमारी फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज अ लीगल राइट. Ninth question is aspirational block program aims at providing monetary support to the people living in slum areas at the block level. This statement is entirely false because ABP जो है that doesn't provide monetary support to any people, बल्कि ये 5 themes पे focus करता है, that is health and nutrition, second is education, third is
agriculture and water resources, fourth is infrastructural development, and fifth is financial inclusion and skill development. तो यहाँ पे हम मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. एंड ABP जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ADP को हमने लॉन्च किया था 2018 में एंड इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो हम आगे देखेंगे. Question number 10 is variable dearness allowance applies to dash. Variable dearness allowance apply करता है to central government employees. Central government employees को apply करता है and जो VDA है it is revised in every 6 months according to the changes जो कि CPI में made किए जाते हैं. Let's get to the 11th question. 11th question is with the reference to India, which statement is or are correct? First statement is judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate. यहाँ तक ये statement true है एकदम. And such accused is locked up in the police station, not in jail. अब यहाँ पे ये statement correct नहीं है. Concerned magistrate की custody में होता है accused, but he or she is kept in the prison, not in the lockup in the police station. So the first statement is not correct. Second statement पढ़ते हैं. Second statement is during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. This statement is entirely correct. कोर्ट के अप्रूवल के बिना पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज हैं वो इंटेरोगेशन नहीं कर सकते हैं सस्पेक्ट का. लेट्स गेट टू द 12th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू डियरनेस अलाउंस विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. डियरनेस अलाउंस के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट दैट द गवर्नमेंट पेज टू द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स को दिया जाता है. कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. सेकेंड स्टेटमेंट इज डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सैलरीड एम्प्लॉयज़. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट डियरनेस अलाउंस के रेफरेंस में करेक्ट है. लेट्स गेट टू द 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन इज अबाउट सिकल सेल क्राइसिस. सिकल सेल क्राइसिस रेफर्स टू द डिसफंक्शनल रेड सेल्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ब्लड वेसल्स में जब ब्लॉकेज हो जाती है उसकी वजह से सिकल सेल क्राइसिस होता है. इसकी वजह से सीवियर पेन होता है, ऑर्गन डैमेज भी होता है. इसी से रिलेटेड एक और टर्म है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया जो होता है इट इज़ ड्यू टू द डिसफंक्शनल रेड सेल्स. उसकी वजह से अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स हो जाते हैं. सिकल सेल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल लिया है टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. 14th क्वेश्चन पे हम आते हैं. नमदफा नेशनल पार्क is famously inhabited by dash. It is only park in the world to have all the 4 species of big cat. बिग कैट की चारों स्पीशीज़ यहाँ पे हैं. चारों स्पीशीज़ में क्या क्या आता है? टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड. नमदफा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की. एंड ये जो नेशनल पार्क है ये ट्राई जंक्शन के पास लोकेटेड है. इंडो म्यांमार एंड चाइना के ट्राई जंक्शन के पास. इट इज़ लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश एंड ये हमारा 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है. 15. Mammatus clouds are related to stratocumulus clouds. Mammatus clouds are related to stratocumulus clouds if the statement is true or false. This statement is entirely false क्योंकि जो mammatus clouds होते हैं they are related with cumulonimbus clouds, not stratocumulus clouds. Cumulonimbus clouds से ये related होते हैं. बेसिकली एक सेल्यूलर पैटर्न फॉर्म करते हैं. जब ये क्लाउड्स होते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ हेल, ऑफ हैवी रेन और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म वाली कंडीशंस के पास ही ये फॉर्म होते हैं. लेट्स गेट टू द 16th क्वेश्चन. 16th क्वेश्चन इज एम सैंड इज डैश एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश. एम सैंड जो है वो आर्टिफिशियल सैंड होता है एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रशिंग लार्ज हार्ड स्टोन्स. अब ये जो लार्ज हार्ड स्टोन्स होते हैं ये बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड ग्रेनाइट. एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने एक सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क दिया था जहाँ पे इन ऑल्टरनेटिव्स को हमने एम सैंड हो गया, OB हो गया, दैट इज ओवरबर्डन सैंड ऑफ कोल माइंस. लेट्स गेट टू द 17th क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन इज अबाउट क्वासी क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड
in a pattern which repeats itself in regular intervals. We have to tell if this statement is true or false. पहली बात तो क्वासाई क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कॉमन क्रिस्टल्स की तरह नहीं होते. जैसे कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल हो गया, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें एक क्यूबिक पैटर्न फॉर्म होता है, रेगुलर इंटरवल्स पे अपने आप को वो रिपीट कर रहा होता है पैटर्न. बट क्वासाई क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं होता, रिपीट कर रहा होता है पैटर्न बट इन द इरेगुलर इंटरवल्स, एंड डेविएटेड होता है पैटर्न. हमारा जो इसमें पैटर्न होता है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर से डेविएटेड होता है. सो क्वासाई क्रिस्टल के ऊपर जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि इट रिपीट्स इटसेल्फ, द पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ बट इन अ इरेगुलर इंटरवल. Let's get to the 18th question. 18th question is about muons. Muons are formed when dash rays hit the particles in the Earth's atmosphere. Muons जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं when cosmic rays hit the particles. Cosmic rays कहाँ से आती हैं? Cosmic rays आती हैं सन से एमिट हो रही होती हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हमारी अर्थ की तरफ आ रही होती हैं. बट कुछ रेस को हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डेविएट कर देती है, एंड कुछ रेज हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं. मोग्राफी भी हम परफॉर्म करते हैं. मोग्राफी जो होती है इससे हम लार्ज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसकी स्कैनिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल पिरामिड्स हो गया, वॉल्केनोज हो गया, उनके इंटीरियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. पिरामिड्स में फॉर एग्जांपल हमें कोई हिडन कंपार्टमेंट पता लगाना है जो हम वैसे नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम मोग्राफी का भी यूज़ करते हैं. एंड कॉस्मिक रेज जब हिट करती हैं तो मुऑन्स फॉर्म होते हैं. Let's get to the last question for today, that is match the following. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज भितरकनिका नेशनल पार्क, सेकंड इज पलगट गांव, थर्ड इज केल्प फॉरेस्ट, फोर्थ इज शहतूश. सो फर्स्ट इज भितरकनिका. भितरकनिका हमारा सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, सो इसका मैच हो जाएगा मैनग्रोव से. ये एक रामसर साइट भी है. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें पलगट गांव, ये केरला में लोकेटेड है, तो इसका मैच हो जाएगा केरला से. बेसिकली ये हमारे घाट्स के बीच में एक ब्रेक है, रिलेटिवली थोड़ा फ्लैट एरिया है, तो इट मेक्स ईजी फॉर द एशियन एलिफेंट्स टू नेगोशिएट थ्रू दैट एरिया. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें केल्प फॉरेस्ट. सो केल्प फॉरेस्ट अंडर वाटर इकोसिस्टम है, शैलो वाटर में होता है, एंड इसको प्रोटेक्ट करता है थर्मोक्लाइन. जो सरफेस वाटर हमारा वार्मर होता है, नीचे डीप वाटर हमारा कोल्ड होता है, तो उसके बीच में जो ट्रांजिशन लेयर होती है उसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं. लास्ट इज शहतूश. शहतूश क्या होता है? शहतूश वूल होता है ऑफ तिब्बतन चीरू. चीरू इज इंडेंजर्ड इन द ICUN रेड लिस्ट. सो शहतूश का मैच हो जाएगा चीरू से. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब टू अनसरकारी एंड कीप वॉचिंग.